A very good afternoon to everyone. On behalf of Deputy Commissioner and in charge Child Health and RBSK, I take this opportunity to welcome all the participants to this third webinar under National Birth Defect Awareness Month. Keeping in line with the RBSK philosophy, catch them early, treat them early. Topic selected for today's webinar is prevention and early detection of birth defects. Please join me in welcoming our speaker for the day, Dr. Madhulika Kamra ma'am, a renowned pediatrician, head of the Department of Pediatrics, in charge of Division of Genetics at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Welcome, ma'am, and thank you for giving your valuable time to us. All participants are requested to post their questions in the chat box. We shall answer them at the end. Over to you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, Deepti. At the outset, I would like to thank Ministry of Health and Family Welfare and the RBSK team for involving me in this awareness program. And it's really nice to see that there are a large number of participants and they are still joining. So I would share my screen and can I do that, Deepti, now? Sure, ma'am, you can start. So can you see the screen now? Ma'am, the screen is visible. Okay, we can put it on slideshow. I'll do that. Just let me go up. Okay, so I hope the screen is visible. I'm audible. Slides are moving. Yes, ma'am. All good. Okay, right. तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगी, I'm going to speak in mixed Hindi and English language. I understand कि सब अलग-अलग लेवल के हेल्थ केयर वर्कर्स ने इस सेशन को ज्वाइन किया है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम सारी बेसिक चीजें जाने और जो इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं बर्थ डिफेक्ट डिटेक्शन के, प्रिवेंशन के, उसके बारे में बात करें. And in the beginning itself, I would like to say that some of the things may be very basic because Dipti told me that there may be pediatricians, neonatologists who know much more about all this. But then I have kept it at a basic level, जिससे कि across board सबको कुछ फायदा हो इस presentation का. तो मैं बात करूंगी early detection और prevention of birth defects के बारे में. So the plan of presentation is as you can see here. तो मैं basically दो segments में बात करूंगी. एक तो हम थोड़ा सा basics जानेंगे birth defects के बारे में. And I am sure आपके कुछ जो पीछे lectures हुए हैं उसमें भी ये cover हुआ होगा, तो उसमें थोड़ा duplication रहेगा. But then some basic things we all need to know. And what are the types of birth defects? What are the risk factors for birth defects? All these and some common birth defects. ये हम इस वाले पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे. और दूसरा पार्ट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें हम बचाव की बात करेंगे at different levels. So because this is a RBSK program and you are all aware about the components of RBSK, तो जब हम birth defects की बात करते हैं तो this is one of the Ds of RBSK as you all know. और हमारा यहाँ पर focus है birth defects पे जो visible मतलब structurally visible हो सकते हैं और they may not be visible also. And इसमें मैं एक और part add करूंगी जो आप नीचे देख रहे हैं point number 30. I should have highlighted this. इसमें जो newborn screening का component आता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी. So this is the basic idea of this particular presentation. सबसे पहले हम definition की बात करते हैं कि birth defects क्या होते हैं. So I'll just read this out for better understanding. These are defined as abnormalities of body structure और function. तो ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि जब हम birth defects बोलते हैं या जन्म पे विकार बोलते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चरी बनावट का नुक्स हो जो हमें नजर ही आए.
वो फंक्शन का नुक्स भी हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी ठीक से काम नहीं करे। तो दोज आर कॉल्ड फंक्शनल डिफेक्ट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्ट्रक्चरल विजिबल बर्थ डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें क्लेफ्ट लिप पैलेट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये कॉमन है, आप सब जानते हैं। जब हम बात करते हैं कि फंक्शनल बर्थ डिफेक्ट्स हैं या द डिफेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल एक्सटर्नली, जिसके लिए हमें कुछ टेस्ट चाहिए, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, बच्चों की हार्ट की बीमारी है, उसके लिए हमें इको करना पड़ेगा। अगर हम किडनी का प्रॉब्लम देखना चाहते हैं, रीनल प्रॉब्लम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। और जब हम फंक्शनल डिफेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें हमें स्ट्रक्चरली कुछ नहीं दिखेगा, ना तो एक्सटर्नली विजिबल कुछ दिखेगा, ना ऑन से इको या अल्ट्रासाउंड कुछ दिखेगा, बिकॉज ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या एंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से, या हियरिंग लॉस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फंक्शनल बर्थ डिफेक्ट का। तो आप सब लोग जानते होंगे, हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, जो कि एक कंपोनेंट है आरबीएसके का। एंड वी ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर कि बर्थ डिफेक्ट्स को हम जनरली जब बात करते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि वो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, पर दिस आई वांट टू एम्फसाइज कि वो हम फंक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं। और हम कंजेनाइटल एनॉमलीज या एबनॉर्मेलिटीज यूजुअली जब टर्म यूज करते हैं तो वो यूजुअली स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है। तो दीज आर स्लाइटली कंफ्यूजिंग टर्म्स, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड यू नीड टू रिमेम्बर कि बर्थ डिफेक्ट्स कैन बी स्ट्रक्चरल, जो एक्सटर्नली विजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और दे कैन बी फंक्शनल, जिसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमें क्यों इतना इंटरेस्ट है कि हमको बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में जानना है? तो ओवरऑल अगर हम देखें प्रिवेलेंस बर्थ डिफेक्ट्स की, तो 2 to 3% ऑफ बर्थ्स हैव वेरियस काइंड्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, एंड दिस डेटा इज मेनली फ्रॉम द स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल बर्थ डिफेक्ट्स का बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। डेटा इज देयर पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप हम पुरानी पूरी पॉपुलेशन देखें तो ये नंबर बहुत ज्यादा है, और अगर हम बर्थ्स ईच ईयर देखें तो भी नंबर बहुत ज्यादा है। तो इसकी बॉटम लाइन ये है कि एज हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे हम प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे हम सेकेंडरी लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे हम टर्शरी लेवल पे बात कर रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें इनके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज जस्ट टू शो यू कि कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स कौन से हैं, ये एक स्टडी में से लिया हुआ है। तो आपको भी, आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप लोग देखते होंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइन की प्रॉब्लम होना या हेड नहीं बनना, एनेंसेफेली, ये बहुत कॉमनली रिपोर्ट होता है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल जैसे क्लब फुट, ये कॉमनली रिपोर्ट होता है। ओरोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट, और कुछ जेनाइटोयूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज भी। सो मोर और लेस अगर हम पूरा भी डेटा देखें, मैंने बहुत डेटा इसमें नहीं दिया है बिकॉज इट वाज नॉट अ मैंडेट फॉर दिस टॉक, बट ओवरऑल 2 to 3%। और अगर हम डेटा भी देखते हैं तो उसमें यही आता है कि जो नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं वो काफी कॉमन है, जिसमें कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स विच इंक्लूड एनेंसेफेली आल्सो। एंड देन अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ कुछ जगह से मस्कुलोस्केलेटल बहुत सारे आते हैं, जिसमें क्लब फुट रहता है, और उसके अलावा और हाथ पैरों के डिफेक्ट, जिससे जिसे हम बोलते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट, जिसमें लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज, लिम्ब रिडक्शन, ये वाली सारी चीजें आती हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि न्यूनेटल डेथ्स जिनके बारे में आपको पता होगा, उनके कॉमन कॉजेस क्या होते हैं विच हैव बीन लिस्टेड हियर, तो आई वांट टू एम्फसाइज हियर कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से अराउंड 9-10% कंजेनाइटल एनोमलीज की वजह से होते हैं, अगर हम कम्युनिटी की बात करें, इन जनरल कम्युनिटी की बात करें। पर अगर हम टर्शरी केयर सेंटर्स में जाते हैं, जैसे हमारा सेंटर है या बहुत सारे और सेंटर्स हैं, तो उसमें क्योंकि रेफर सेलेक्टिवली ऐसी मदर्स होंगी या ऐसे बच्चे होंगे जिनमें कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं या फंक्शनल डिफेक्ट्स हैं, तो ओवरऑल वहाँ प्रपोर्शन मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का बढ़ जाएगा न्यूनेटल डेथ्स में रिलेटेड टू बर्थ डिफेक्ट। सो दिस, जैसे आई वांट टू मेक इट क्लियर कि कम्युनिटी लेवल में हो सकता है कंट्रीब्यूशन कम हो, but at the higher level of centers, because of the referral bias, we may have more proportion of cases who have morbidity and mortality because of birth defects. तो Ma'am, ये, हाँ, sorry to interrupt. Ma'am, we're getting a lot of requests from the states that we have little more English when we are doing the okay, presentation, ma'am. fine. So you told me Hindi, fine, no problem. So should I repeat Both just something? balance both of them. Okay, right. So I'll do both. So till now, is it Thank you, okay or ma'am. should I go back? No, that's okay, ma'am. Till now we Right. are fine. Right. But So I'll as we I'll speak speak on. in both. I'll speak in both, Okay. right?
So coming to the risk factors, and risk factors are important because for prevention risk factors are important. So risk factor हमें पता होना चाहिए कि which are the risk factors which may lead to birth defects. Okay, so these can be genetic. So genetic कारण हो सकते हैं, or they can be non-genetic, as you can see on this side. So genetic कारण की अगर हम बात करते हैं, तो जो mainly birth defects हैं, majority of the birth defects which we have been talking about till now, which may be say neural tube defects or a cleft lip palate or a club foot, they are all classified under multifactorial. So what do we mean by multifactorial is that we do not know the exact genetic etiology, but there is component of genes and environment. तो यहाँ क्या है, genetic predisposition हो सकता है for some of the malformations, and then if you have environmental factors and multiple genes, वो साथ में आके they can cause a defect, and I told you the examples of that. Some of them can be purely genetic. Purely genetic का मतलब कि उनकी etiology ही genetic है, तो उसमें chromosomal disorders आएंगे, जैसे कि Down syndrome होता है, and single gene disorders आएंगे. The examples of that would be thalassemia, muscular dystrophy, etc. Okay, so these are the genetic risk factors. अगर हम non-genetic risk factors की बात करते हैं, then there are many factors. In fact, in many structural birth defects, exact etiology is not known, and it is evolving now. But यहाँ पर जो दिखाए गए, the list which has been shown here is known to cause some of the birth defects, and these are non-genetic. So everybody knows about maternal infections. जैसे टॉर्च की हम बात करते हैं, रूबेला की बात करते हैं, जो भी एक नोटिफाइबल डिजीज है कि मदर को अगर रूबेला इन्फेक्शन होता है तो बच्चे में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है, जिसमें कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, आई की प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकते हैं. इसके अलावा हाई रिस्क फैक्टर्स जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज है. जेस्टेशनल डायबिटीज इज वन फैक्टर जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस के लिए प्रीडिस्पोज करती है और डिसऑर्डर्स के लिए भी डिस्पोज करती है. मैटरनल ओबेसिटी मतलब मदर का वेट अगर ज्यादा है, देन इट हैज बीन फाउंड दैट द मालफॉर्मेशंस आर मोर. एंड इम्पोर्टेंटली ड्रग इनटेक और substance abuse. So drug intake, there are certain drugs which are known to cause malformation. जैसे कि जो epilepsy के लिए the drugs which are being given, like say we are talking of valproic acid, है ना? Valproate is a common drug which is used for epilepsy. And then there is Eptoin, diphenylhedantoin sodium. So these are classified as the drugs which should not be used during pregnancy because they are categorized as say group D drugs, जिससे कि malformations होने का chance रहता है. तो ये यहाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ that it is important to take this history when you are evaluating a baby who has been detected during pregnancy or after pregnancy for having a birth defect. तो ऐसा हो सकता है कि ये defect जेनेटिक नहीं हो, मदर ने कोई ड्रग यूज करा है उसकी वजह से हो, तो दैट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर काउंसलिंग द फैमिली बिफोर द मदर इज प्रेग्नेंट. सपोज द मदर इज टेकिंग सम टेरिटोजेनिक ड्रग, ऑलरेडी उसको कोई ड्रग मिल रही है जिसका नोन इफेक्ट है बच्चे के ऊपर, तो बिफोर शी प्लान्स प्रेगनेंसी, जब वो प्रेगनेंसी प्लान करती है उससे पहले ही हम कंसल्ट कर सकते हैं कि हम कोई ऑल्टरनेटिव ड्रग दे सकते हैं क्या, जिसकी बच्चे पे असर कम हो. इसको हम बोलते हैं टेरिटोजेनिसिटी. ये अगर कम हो तो ऑल्टरनेटिव ड्रग. और इम्पोर्टेंटली पर्टिकुलरली जो एपिलेप्सी वाली ड्रग्स हैं उससे जो इफेक्ट होता है बच्चे में, पर्टिकुलरली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसको बचाने के लिए हम फोलिक एसिड की यूज कर सकते हैं. इट इज फाउंड टू बी इफेक्टिव. सो ये हम बाद में बात करेंगे. इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज विच में नॉट बी वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, जैसे अल्कोहल यूज, उससे पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, पर स्मोकिंग, टबैको, इन सब से भी कुछ कोरिलेशन बताया गया है एबनॉर्मेलिटीज का. सो हेल्दी लाइफस्टाइल बताना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली इन द प्री प्रेगनेंसी पीरियड, प्री कंसेप्शन. अगर आपके पास कोई कपल आता है तो आपको ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ेंगी. और हालांकि बहुत क्लियर कोरिलेशन नहीं मिलता है, बट हम यूजुअली एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड मेजर एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए, बट देन क्लियर कोरिलेशन. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट स्लाइड बिकॉज इसी बेसिस पर फिर हम आगे प्रिवेंशन के बारे में भी बात करेंगे. तो हम स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट्स. तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेजर एंड माइनर. एंड आपको समझ में आएगा कि मेजर का मतलब है जो सिग्निफिकेंट है, जिनके लिए हमको इमीडिएटली कुछ करना है, which require medical or surgical intervention, which have social consequences.
Whereas माइनर है जिसमें सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कुछ कॉस्मेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हो. So when we see any patient, any child with a birth defect, we have to be clear in our mind that we are dealing with a major birth defect or we are dealing with a minor birth defect. So, and needless to say, as early as you pick them up, management is going to be better. So these are some selected major birth defects. There's a list which you can see here. तो important हम पहली बात कर चुके हैं, ब्रेन से रिलेटेड और न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, क्लेफ्ट्स हैं, ओरोफेशियल क्लेफ्ट्स आर देयर, देन बहुत सारे जेनाइटो यूरिनरी और इंटेस्टाइनल बर्थ डिफेक्ट्स भी होते हैं, और इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जिसके बारे में डॉक्टर अनीता ने मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में बात किया है. ये जैसे मैंने पहले बताया, दीज आर स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट्स बट दे आर नॉट एक्सटर्नली विजिबल. ठीक है. इसके अलावा और एक्सटर्नली नॉट विजिबल बर्थ डिफेक्ट्स कैन बी रीनल, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला जहाँ पे की जो ट्रेकिया है और जो खाने की नली है उसके बीच में कम्युनिकेशन है. So these are selected major congenital anomalies, and in all the programs, at least these are looked for. All programs do not have congenital heart disease screening, but then majority now world over have this program. And these are some examples of the minor birth defects. तो in isolation अगर ये minor birth defects हैं तो हमें immediate concern इसके लिए नहीं होना पड़ेगा. तो जैसे आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा ear anomaly है, ये कि eye की anomaly है, ये foot abnormality, इसके लिए हमें intervention करना पड़ेगा. This is a tongue tie. Intervention for this would depend on कि इसका extent क्या है, स्मॉल अम्बिलिकल हर्निया, एबनॉर्मल हेड शेप. तो इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इज इट देयर इन आइसोलेशन, मतलब सिर्फ यही है और कुछ नहीं है बच्चे में, या साथ में और भी एबनॉर्मेलिटीज है. अगर साथ में और भी एबनॉर्मेलिटीज हैं तो हमें पूरा एवेल्युएशन करके उसका आगे टेस्ट करना पड़ सकता है, ये जानने के लिए कि उसका रीजन क्या है. ये आइसोलेटेड डिफेक्ट्स में हो सकता है हमको कोई और स्पेसिफिक जांच नहीं करनी पड़े. Okay, now we will talk about some of the common birth defects. So common birth defect हमने जाना कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉमन है जिसमें कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और इसमें इंडिया में पाया गया है कि करीब 4.5 पर 1000 बर्थ्स है, ये मिला के डेटा है, और वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. और मैंने जैसे बोला इसकी एग्जैक्ट ईटियोलॉजी अभी मालूम नहीं है, कुछ जेनेटिक कॉम्पोनेंट है, there is some genetic component, there is some environmental component, but the most important thing is कि majority अगर previous pregnancy में हुआ है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो 70% तक प्रिवेंशन होता है अगर हम फोलिक एसिड देते हैं, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो ये दिस इज जस्ट टू शो यू वेरियस टाइप्स. तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम पिकअप करें चीजों को जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं. एनेंसेफेली के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये बना ही नहीं है वॉल्ट, है ना. तो हमें यहाँ फैमिली को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दिस इज अ लीथल डिसऑर्डर, एंड आई मीन इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पिक दिस अप, parents would choose to terminate the pregnancy. Similarly, this is another kind of neural tube defect, which is craniorechtscysis. Again, outcome is very poor in encephaly. Then this encephalocele, the outcome will be variable, and for this we need to consult the neurosurgeons कि हम depending on कितना brain tissue है, और वो MRI करके पता चलता है, और हम फिर depending on the condition of the child we decide कि हमें आगे क्या intervention करना है. So commonly what you see is in the live born babies is the meningocele or a meningomyelocele. जो it can be there at various places. Classically lumbosacral या lumbar region में होती है. And again this is just to emphasize कि majority में ये isolated होती है. So this is isolated non-syndromic, but you can have associated hydrocephalus, which means that there is ventriculomegaly, मतलब ब्रेन में पानी भी है साथ में. तो अगर हाइड्रोसेफेलस है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो वो एक ही एबनॉर्मेलिटी का पार्ट है. बट व्हाट वी नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इज कि कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बिकॉज अगर और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं देन इट कैन बी अ जेनेटिक कॉज, और उसके लिए हमें स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ेंगे. इफ इट इज common garden variety of say meningomyelocele with hydrocephalus, in that situation हमें कोई major testing नहीं करनी है ये पता करने के लिए कि इसका cause क्या है. I hope I am clear about this. तो second group is orofacial clefts. Again different types के होते हैं, unilateral, bilateral, midline,
again extent you have to see and clearly describe कि ये क्या है, and we will come on that how important it is to describe the defect. And इसका birth prevalence is about 1.3 per 1,000, and here it is extremely important because almost all of them will be reparable. And we have to see, maybe you have different sessions on clefts, but you have to be very careful in timely referral, because timely correction से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं. Lip तो बहुत जल्दी correct कर सकते हैं. Cleft palate के there are timings, but you have to have your team ready to manage these patients for proper referral and sort of tag these families to the proper center where the further management will be done. Then Talipes equinovarus is again a very important and relatively common disorder, and you can see the birth prevalence here. And here again, it is extremely important to refer these patients in time. So we recently had an interaction, there was a presentation, and our orthopedic surgeon was there, and he said that majority of these patients would not require surgery. सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इनको टाइम से भेज दें, बिकॉज वो एक प्रोसीजर से थोड़ा मैनिपुलेशन से और प्लास्टर से पॉन्सेटी टेक्निक से उससे मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इवन इफ दे हैव आइडेंटिफाइड लेट दे गेट करेक्टेड. बट as soon as we identify them at birth, I think it is extremely important to detect them and refer them to the referral centers. You have in RBSK, you have a good referral network there, but then immediately, so we have to, they will do some posturing and they will do some casts and all. And this is a very, very, very treatable disorder. So we should always keep this in mind. And again, the same thing, look for other abnormalities. This is a bottom line for all. अगर आपको एक डिफेक्ट दिखता है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, तो हमें स्क्रीन करना है अच्छी तरह कि we are not missing another defect, because in that case the etiology may be genetic also. Okay, so this you have to keep in mind. Then omphalocele and gastroschisis, ये भी दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं और इसमें हमें क्लिनिकली ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसमें ये है कि यू डिटेक्टेड इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड हर्निएशन इज थ्रू द अम्बिलिकल रिंग, तो आपको अम्बिलिकस दिखेगा नहीं. वेयरएज इन गैस्ट्रोक्साइसिस यू विल सी द अम्बिलिकस सेपरेटली. इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने की जरूरी है कि ओम्फेलोसील में जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, क्रोमोसोमल कॉजेज हो सकते हैं, पर गैस्ट्रोक्साइसिस में कोई जरूरत नहीं होती है हमें कोई जेनेटिक टेस्ट करने की. तो ये बहुत ब्रॉड मोटी चीजें हैं. व्हेन वी आइडेंटिफाई तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपको इसको पीडियाट्रिक सर्जरी में कंसल्ट करना पड़ेगा. एंड अगर हमने ये एंटीनेटल डिटेक्ट कर लिया है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें एंटीनेटली ही पता चल गया है एंड वी हैव रूल्ड आउट कि ये कोई जेनेटिक कॉज नहीं है टेस्ट करने के बाद, तो even when the mother is pregnant and during her second trimester, third trimester only, we link them with the future pediatric surgeons who are going to operate on this child. And this is true for any anomaly which we detect on the ultrasound. So in the antenatal period only, the couple is sort of familiar that what is to be done immediately after birth, where to go, what would be the plan, will they wait, will they operate immediately, because वो सारे concerns parents को बहुत रहते हैं और फिर they are not able to make a decision अगर हम उनको immediately birth के बाद बताते हैं. If we are not able to detect it antenatally, that's fine, पर अगर हम immediately birth के बाद उनको शुरू करते हैं बताना, तो they get really confused. So preparing the parents if we detect them antenatally is easier. Achha, this is just to show you a chart which is an old one, and this was prepared. We have been involved in RBSK and we all sort of came together to prepare this. So this is a very handy chart, and I'm sure RBSK जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर ये चार्ट अभी भी बर्थिंग फैसिलिटी में होगा. तो this is a kind of pictorial presentation. Based on that, you can match your baby with these defects and label. So this is important. But after saying that, you may get many other abnormalities which you may not be able to classify based on this. So उसमें आपको descriptive ही जाना पड़ेगा. But then this is a ready reference chart which we find very, very useful for our healthcare providers in the birthing facility. So अभी तक हमने क्या जाना कि क्यों important है birth defects, structural defects क्या होते हैं, functional defects क्या होते हैं, and then how important it is to pick them up early, इनको हम कैसे identify करते हैं, और हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है when we are seeing these patients. तो अब इसके लिए सर्विलेंस जरूरी है. हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने बच्चे इस डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे हैं या दे आर sort of there. So in the RBSK program, because हमारे पास
बेसलाइन डेटा पॉपुलेशन वाला डेटा है, तो हम क्रॉस सेक्शनली देखते हैं कि एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम कितने बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ हैं और हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। वेयर जो ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ WHO बर्थ डिफेक्ट्स रजिस्ट्री का, जिसमें हम प्रोस्पेक्टिवली देखते हैं कि जितने बच्चों की बर्थ हुई, मल्टीपल सेंटर्स आर इन्वॉल्व हियर, जितने बच्चों की बर्थ हुई आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, तो उनमें कितने हमें बर्थ डिफेक्ट्स मिले। दिस इज फॉर सर्विलेंस पर्पसेस. And this is the birth defect surveillance manual, which is easily available on the net if you want to go through. And similarly, as you are all aware, excellent RBSK guidelines are also there. So I've just shown you some pictures here, and these are all also easily accessible. Then you will need to know the details कि आपको किस तरह से evaluate करना है if you find something. Okay. So I have just listed here the common major birth defects and optional birth defects which have been included more or less in both the programs, like the WHO registry and also in the RBSK. तो ये हैं defects जिसमें neural tube defects हैं, clefts हैं, talipus है, limb reduction है, hypospadias है, intestinal है, gastroschisis है, and porphyrotitis. So you can realize that these are the defects जो हम easily बाहर से देखकर ही पता कर सकते हैं, ठीक है ना? तो these are like mandatory to report. And then these are some of the optional ones जिसमें Down syndrome है, congenital diaphragmatic hernia है, congenital heart defect है, and some others also. So this is kind of a guide which is being used for the WHO registry, and more or less similar thing is being followed for the RBSK also. And this slide I have just put here to show that अगर आप surveillance करते हैं तो you have to code the birth defect. So there's a ICD coding system. 10 is being used now, but 11 is the later version. So each defect you have to code. और code करने का क्या फायदा है? Then you can compare across populations कि इंडिया में ये है, तो बांग्लादेश में क्या है, तो नेपाल में क्या है, या other CIR countries में, या other Western countries में क्या है, तो code से चलता है. तो if you have given a correct code, say for neural tube defect, then you will come to know कि हमारे देश में neural tube defect कितने हो रहे हैं with that code, and you can compare it with the countries जहाँ पे कि फोलिक एसिड प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वहां पे हो सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम हो रहे हैं. And this I just put, I thank Deepti for sharing all these posters, and they are wonderful posters just to make patients aware. तो हम awareness की बात कर रहे हैं इस month में, तो this is just a snapshot कि अगर आपके बच्चे को cleft है तो correct हो सकता है, हिप का डिस्प्लेजिया है तो करेक्ट हो सकता है, क्लब फुट करेक्ट हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिपेंडिंग ऑन कि क्या डिफेक्ट है, कितना एक्सटेंट है, करेक्ट हो सकता है. congenital deafness early detection is extremely important कि आप within 1 month डिटेक्ट कर लें, एक्ट करें, मतलब 136 वाला जो उसमें रूल होता है. और congenital heart disease also डिटेक्ट हो सकते हैं. These are very nice posters and I'm sure all of you have already seen this. So now going on to the second aspect, we have covered the first part of the presentation. Second aspect में हम prevention की बात करेंगे. तो prevention can be at the primary level, secondary level and tertiary level. तो primary prevention का मतलब क्या है? That we do not allow the defect to occur. Okay, so इसके examples बहुत कम हैं. So examples like one exceptional example is folic acid consumption. So even if पहले pregnancy में कुछ भी problem नहीं हुआ है, neural tube defect नहीं भी है, there is a recommendation that all mothers who are in the childbearing age who can become pregnant should take 0.4 milligram of folic acid daily. And this has to be taken periconceptionally. Periconceptional का क्या मतलब होता है? That you have to do it before conception. Before conception का क्यों करना है? क्योंकि by the time the mother comes to know, the critical period of the formation of neural tube is already gone. 5-6 weeks पर ही बन जाती है neural tube. तो हम ये बताते हैं कि आप इसको continuously ले सकते हो, but specifically if it's a planned pregnancy, जो हमारे country में नहीं होती है, then you have to start 2 months before to 3 months after conception. Okay, so this is the dose when there is no family history of a neural tube defect. Whereas if there's a family history of a neural tube defect, तो dose ज्यादा होती है, 4 मिलीग्राम. हमारे पास 5 मिलीग्राम टैबलेट आती है, तो हम 5 मिलीग्राम की टैबलेट देते हैं. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन बताया गया है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो 50% तक प्रोटेक्शन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, विच इज अ ह्यूज प्रोटेक्शन. और अगर हम दूसरा ग्रुप लें जहाँ पे कि पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो चुका है, वहाँ पे 70% तक प्रिवेंशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. और
प्राइमरी प्रिवेंशन में प्री कंसेप्शन हेल्थ एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वी डिस्कस्ड अबाउट इट. स्मोकिंग अवॉइड करना है, ओबेसिटी, डायबिटीज, टेरेटोजेनिक ड्रग्स, दीज आर ऑल अगेन एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन. एक और प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल होता है जो फॉलो करना मुश्किल होता है, जैसे हम थैलेसीमिया की बात करें, विच इज ऑल्सो अ बर्थ डिफेक्ट, कि अगर हम पहले से ही पता लगे कि कौन कैरियर है, अगर दोनों पार्टनर्स कैरियर है, तो दे डिसाइड कि हम आगे प्रेगनेंसी नहीं करेंगे, which is not a viable option and which is not a option taken, but that is a kind of primary prevention which we would not do. Advanced maternal age की mothers हैं, वो decide करें कि हम conceive नहीं करेंगे एक particular age के बाद, that could be a primary prevention, but then again that is not practical. So primary prevention by carrier detection, primary prevention because आपका कोई risk factor है और age advanced है, तो वो नहीं apply करता. But definitely these two things, folic acid and preconceptional health education and following good health practices would be extremely important for primary prevention. So I hope it's clear. Secondary prevention is most of the time practiced. उसमें हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं एबनॉर्मेलिटीज, एंटीनेटल स्क्रीनिंग कर सकते हैं फॉर डिफेक्ट्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और देन जेनेटिक सर्विसेज चाहिए उसके लिए प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसके बारे में हम बात करेंगे. टर्शरी which is also an important component of RBSK, उसमें ये है कि एक बार प्रॉब्लम हो गई, then you have to act immediately and do the repair as per the guidelines, like cleft lip palate repair and all the rehabilitative measures. So that's kind of a tertiary prevention by acting on whatever has happened. So this is a very nice poster again, shared by Dipti, again under the RBSK. You can see how beautifully they have written कि pre-pregnancy planning में क्या करना है, क्या आपको अवॉइड करना है, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप पूरा डिटेल में जेनेटिक हिस्ट्री लें, फैमिली हिस्ट्री यू शुड टेक, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि दीज आर द हाई रिस्क मदर्स हु आर प्रोन फॉर बर्थ डिफेक्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक हिस्ट्री विच दे. ठीक है. एंड इसके अलावा एंड देन ऑब्वियसली फोलिक एसिड सबको लेना है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो इफ वी फॉलो दिस, ये बिल्कुल एक बहुत सिंपल चीज है which can be done at the peripheral level also. So all our healthcare workers, if they can take a quick history, हमारा एक DBT का प्रोग्राम है जिसको उम्मीद प्रोग्राम बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, वहां हमने एक चेकलिस्ट बनाया है. तो जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं प्रोजेक्ट में, जब भी एंटीनेटल मदर आती है या इवन बिफोर प्रेगनेंसी आती है, तो वो ये सारी चीजें देख लेते हैं और जेनेटिक एस्पेक्ट से एक चेकलिस्ट है, टिक टिक लगाते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री में किसी को ब्लड तो नहीं चढ़ता था बार बार, किसी को ब्लीडिंग तो नहीं होती थी, किसी को मसल की प्रॉब्लम तो नहीं थी, किसी को स्केलेटल प्रॉब्लम तो नहीं थी. तो विद दिस वी कैन स्क्रीन दोज प्रेगनेंसीज एंड देन हम एंटीनेटली ही उन पे एक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ प्रिवेंशन में पहले हम बात करेंगे प्रीनेटल स्क्रीनिंग की. क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हाई रिस्क मदर्स को पकड़ लें और प्रिवेंट कर दें बर्थ डिफेक्ट्स को. तो ये दिस इज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि हम इसको मतलब होने नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम इसको जल्दी पकड़ के इस पे एक्ट कर रहे हैं. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने अगर इनको जल्दी पकड़ लिया तो हम इनका कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस कर सकते हैं और आगे प्लान कर सकते हैं. तो ये दिस इज द सेम थिंग व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द रेड फ्लैग साइंस, कि दीज आर द रिस्क हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जिनको हम पहले ही पकड़ सकते हैं. मदर की एज ज्यादा है तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम का चांस बढ़ जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम. Consanguinity is there, then the risk of genetic disorders, autosomal recessive disorders increases. Positive family history, previous obstetric history, if there is multiple abortions, या baby stillbirth हो रहे हैं, या बच्चों में birth defects हो रहे हैं, या फिर हमें पता है कि थैलेसीमिया या सिकल सेल कैरियर है, या पहले बच्चे में हिस्ट्री है थैलेसीमिया की, और दोनों पार्टनर में से भी कोई अफेक्टेड हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए. These, if we take a quick history, at any level you can pick them up and a good number of cases can be picked up during this period and prevent. So prenatal screening में दो चीजें mainly हैं, एक तो biochemical screening है और एक ultrasonography है. These are the two things which are the major ones and I'll very quickly talk about this, we will not go in the details. तो basically biochemical screening जो है वो होती है primarily chromosomal disorders के लिए, and it is a first trimester screening and a second trimester screening. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में प्राइमरीली हम उसको अल्ट्रासाउंड मार्कर्स के साथ क्लब करते हैं और हम फिर रिस्क निकालते हैं कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क कितना है, ट्राइसोमी 13 का कितना है, ट्राइसोमी 18 का कितना है, एंड वो कम्युनिकेट करते हैं. दिस कैन बी डन
अर्ली इन प्रेगनेंसी। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग है वो हम करते हैं 11 से 13 हफ्ते के बीच में, और ये 2 मार्कर्स हैं, पैपे और फ्री बीटा एचसीजी, यू डू नॉट रिमेम्बर। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो लेट होता है 15 हफ्ते के बाद, उसमें हम मल्टीपल मार्कर्स करते हैं। तो इसमें बेसिकली व्हाट वी डू इज दैट ब्लड सैंपल इज टेकन, we take other parameters like age of the mother, previous history and ultrasound markers, और उसके बेसिस पे हम रिस्क निकालते हैं कि ये पर्टिकुलर मदर को क्या डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क है। इसमें एक मार्कर होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, विच इज अ वेरी गुड मार्कर फॉर अ ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसके बेसिस पे क्या मदर में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का रिस्क आ रहा है, तो हम उस हिसाब से आगे स्क्रीनिंग शुरू करते हैं। तो दिस इज वन टेस्ट which is, and now people are preferring first trimester screening because this is found to be more useful. जहाँ तक अल्ट्रासाउंड की बात है, अगेन देर आर टू मेजर gestational ages at what time we would usually want to do ultrasound. एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उस समय हम अर्ली बर्थ डिफेक्ट्स पता कर सकते हैं, और देर आर सम मार्कर्स लाइक न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, गर्दन पे हम सूजन देखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं कि बच्चे की नाक की हड्डी ठीक बनी हुई है या नहीं है, और कुछ और कंपोनेंट्स हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो हम बहुत सारे डिफेक्ट्स पकड़ सकते हैं। तो रेगुलर अल्ट्रासाउंड आइडियली शुड बी डन एटलीस्ट in these two gestational ages. So usually around 12 weeks and usually around 20 weeks. This is the usual recommendation. फिर अब क्या है कि ये तो हमने स्क्रीनिंग की बात करी। स्क्रीनिंग मतलब हम उसमें इन्वेजिव कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने मदर का या तो ब्लड लिया है या मदर का अल्ट्रासाउंड किया है, और हमने एक हिस्ट्री ली है जिससे हमने मदर का रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर दिया है, वेदर द मदर इज एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग अ बर्थ डिफेक्ट और नो। फिर अगर हम प्रीनेटल डायग्नोसिस की बात करते हैं, डायग्नोसिस का मतलब है कि हम fetus का सैंपल लेंगे, we will collect a sample from the fetus and test that sample. This is called prenatal diagnosis and this is invasive. Invasive means we take the sample from the fetus. So these are the various techniques: chorionic villus biopsy, amniocentesis, chordocentesis, with which we take the sample of the fetus. So these are the various timings. Earliest possible you need to remember 11-12 हफ्ते पे हम chorionic villus biopsy करते हैं, amniocentesis around 17 weeks करते हैं, but ये जो all amniocentesis and chorionic villus biopsy can be done later also. So there's nothing that we cannot do beyond this particular time. So this is just pictorially showing you कि ये chorionic villus biopsy दिखाया गया। तो you can see ये uterus है, ये fetus है, ठीक है, ये यहाँ पे placenta है। तो सैंपल कैसे की जा रही है, ये जो ऑपरेटर है वो ये अल्ट्रासाउंड से देख रहे हैं पूरा कि बच्चे के प्लेसेंटा से हम कहाँ से सैंपल ले सकते हैं, और ये सैंपल लिया जा रहा है, ठीक है। एंड इट्स अ प्रोसीजर, इसका थोड़ा प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क भी होता है, पर अगर एक्सपीरियंस हैंड्स में है तो रिस्क इज वेरी वेरी लो, 1 in 500, सम पीपल इवन से 1 in 1000 बर्थ्स, अगर हमने ये 1 in 1000 प्रोसीजर्स। फिर हम इसको, ये कोरियोनिक विलाई फिर ऐसे दिखते हैं लैब के अंदर, और फिर हम इनकी कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्रोमोसोम कर सकते हैं, इसमें हम जीन का टेस्ट कर सकते हैं, इसमें हम बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एमनियोसिंथेसिस दिखाया है यहाँ पे, अगेन अल्ट्रासाउंड गाइडेड, एंड कैसे सैंपल लिया जा रहा है। इसमें फ्लूइड लेते हैं, तो वी हैव टू सी कि किस पार्ट से, जहाँ लार्ज पॉकेट है एमनियोटिक फ्लूइड का वहां से लें। और ये कॉर्ड ब्लड है जो हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट है। You can imagine how slippery the umbilical cord is. तो अल्ट्रासाउंड में देखते हुए स्टेबलाइज्ड हैंड के साथ we'll have to take the sample. So here maternal contamination मतलब मदर का ब्लड ज्यादा आ जाए, ये भी हो सकता है, but this is just to make you familiar with the procedure. Then obviously all these will not be available at the periphery, है ना। तो इसके लिए आपको, अगर आप हाई रिस्क डिटेक्ट करते हो तो आपको रेफर करना पड़ेगा in the network which has been created for referral of antenatal mothers. So दिस इज फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हमारे पास सैंपल आ जाता है तो हम उसको कैसे कल्चर करते हैं लैब के अंदर, और फिर हमको एक्चुअली माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स दिखते हैं। जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 3 क्रोमोसोम 21 है, तो ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का था, ठीक है। ऐसे अगर हम सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की बात करें, जैसे थैलेसीमिया है, बहुत सारे सिंगल जीन डिसऑर्डर है, और आपको पता है कि ये कॉमन है, थैलेसीमिया, सिकल, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफीलिया, ये सब कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। और इसके लिए हम पहले जेनेटिक टेस्ट कर लेते हैं बच्चे का और पेरेंट्स का, और फिर कोरियोनिक विलस बायोप्सी या एमनियोसिंथेसिस करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे में बीमारी है या नहीं है। क्योंकि अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया है तो दोबारा होने का रिस्क 25% तक होता है। तो हियर अगेन आई वुड लाइक टू एनकरेज कि जितनी भी एंटीनेटल मदर्स आती हैं, सबका आजकल रिकमेंडेशन है
कि आपको थैलेसीमिया का कैरियर टेस्टिंग करना चाहिए। अगर मदर कैरियर है वो HPLC से हो जाता है, then the partner should be tested and then prenatal testing can be offered, and if the fetus is affected the parents can decide to terminate the pregnancy. मालफॉर्मेशंस को देखने के लिए बेसिकली अल्ट्रासोनोग्राफी है, ऑलरेडी टोल्ड यू। और अगर हार्ट का डिफेक्ट देखना है तो फीटल इको है, फीटल MRI भी हम आजकल करते हैं, जिससे हमें ब्रेन का मालफॉर्मेशंस और बहुत सारी मालफॉर्मेशंस दिख जाती हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम एग्जांपल ले चुके हैं, you can pick it up very easily early by even the first trimester by ultrasonography, और मैंने आपको बताया कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन से भी कर सकते हैं। जस्ट वन स्लाइड, क्योंकि ये क्वेरी होती है पेरेंट्स की कि इस बच्चे में प्रॉब्लम हो गई तो अगले बच्चे में कितना रिस्क होगा, हमें क्या करना है। तो जो हमने मेजर बर्थ डिफेक्ट्स की बात करी है ना, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है, क्लेफ्ट लिप पैलेट आता है, तो दोबारा होने का चांस वेरी करता है 2 to 5%। तो ब्रॉडली हम अराउंड 5% रिस्क देते हैं। पर अगर एक से ज्यादा बच्चों में हुआ है जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो वो रिस्क बढ़ जाता है, जैसे 10%। तो उसके लिए फिर बचाव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। अगर थैलेसीमिया है तो वो 25% रिस्क होगा, क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर गुणसूत्र का डिफेक्ट है जैसे डाउन सिंड्रोम है, तो जैसे एन्यूप्लॉइडी है, ट्राइसोमी 21 है, तो उसमें भी रिस्क बहुत कम होता है, 1% से कम होता है। और हम जैसे मैंने बताया पानी की जांच से या कोरियोनिक विलस बायोप्सी से हम टेस्ट कर सकते हैं। So finally, the last segment is about the newborn screening, which I told you that it is actually a secondary prevention. तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल आपको देना चाहूंगी न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का, कि ये बच्चा हमारे पास आया 15 महीने पे और ये आया 8 साल की एज पे, एंड देवर फ्रैंक, मतलब even at the face of it we could make out that this is congenital hypothyroidism, and this can be easily picked up by newborn screening. and अगर बच्चों का हम within first few weeks, within first 2 weeks अगर हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, even first 4 weeks, then the outcome of these babies is very good. and न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। Just a minute. So congenital hypothyroidism is the most important disorder which should be picked up by a newborn screening. So this is just to give you an example. जो हमारे programs चले हैं अभी तक newborn screening के, ICMR funded था और DST funded program था जो डॉक्टर सीमा लीड कर रही थी। उनसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे बर्थ पे पकड़ लिए गए congenital hypothyroidism और उनको सबको ट्रीट किया, तो दे आर ऑल लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन ओनली, एंड द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी चीप, जस्ट थायरॉक्सिन हैज टू बी सप्लीमेंटेड। तो विदेशों में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बहुत सालों से चल रही है, 50 साल से ऊपर हो चुका है। हमारे देश में शुरू हुई है कुछ स्टेट प्रोग्राम्स के अंडर, कुछ फंडेड प्रोग्राम्स के अंडर। नौ दिल्ली में नीव प्रोग्राम है, केरला में प्रोग्राम है, RBSK के अंडर प्रोविजन है। तो बेसिकली ये इवॉल्व हुई है, शुरू में बहुत कम थी, कुछ डिसऑर्डर्स के लिए होती थी। अब आपको पता है कि हम हार्ट का भी स्क्रीनिंग करते हैं, हियरिंग का भी स्क्रीनिंग करते हैं, और बहुत सारी और जेनेटिक टेस्ट की भी स्क्रीनिंग हो सकती है। तो सिर्फ यहाँ मैसेज ये है कि ये एक टेस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट नॉट अ टेस्ट दैट यू टेस्ट द बेबी आफ्टर बर्थ, यूजुअली आफ्टर 24 आवर्स करते हैं, you test the baby after birth and then it is just like a test and you leave the baby. You have to have a program so that you have the network in place, that if the baby has an abnormality, confirm कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, कहाँ रेफर करना है, पूरा नेटवर्किंग जरूरी है, बिकॉज डिटेक्टिंग अलोन डजंट मेक एनी सेंस। सो द डिक्टम फॉर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग इज यू डिटेक्ट एंड ट्रीट, you cannot just detect and leave. So this is a basic, very basic principle of newborn screening. Okay, so ये more than a test है, सबको साथ में आना पड़ेगा, public health, primary care physicians, specialty physicians and families। तो हमको सबको साथ काम करना है अगर हम newborn screening लाना चाहते हैं। और जैसा मैंने बोला कि स्क्रीन करके छोड़ना नहीं है, फॉलो अप करना है, कंफर्म करना है, ट्रीट करना है, और प्रोग्राम इवैल्यूएशन करना है कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। तो जैसे एडवोकेसी मटेरियल RBSK में दिखाया, ये एडवोकेसी मटेरियल हमारे ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम में बनाए गए थे। तो अगेन पेरेंट्स को कन्विंस भी करने के लिए फॉर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या करते हैं कि जब डिलीवर हुआ बच्चा, तो हम लोग की नर्सेस हैं, वो जाके पहले काउंसलिंग करती हैं मदर्स की और फादर्स की या जो भी रिलेटिव्स हैं, क्योंकि यूजुअल सैम्पलिंग टाइम 24 आवर्स से पहले नहीं होता। तो और एंटीनेटली भी हम उनको बताते हैं कि एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, एम्स में भी एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम बर्थ डिफेक्ट्स भी लेते हैं, ड्राई ब्लड स्पॉट भी लेते हैं। तो पहले से उनको थोड़ा प्राइम करते हैं, और फर्स्ट 24 आवर्स में जाके उनको ये बुकलेट्स देते हैं, और वो देखते हैं कि
दे अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि सबको ये डर लगता है कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, तो हम इसका क्यों ब्लड सैंपलिंग कराएं। तो उसके लिए उनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। और फिर ये है ड्राई ब्लड स्पॉट लिया जाता है, और ड्राई ब्लड स्पॉट लेना बहुत सिंपल है, और हमारे जो पेरिफेरल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं बहुत इजीली वो सीख जाते हैं और ले लेते हैं। फिल्टर पेपर पे लेते हैं और हील प्रिक से लेते हैं, देन उसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद उसमें बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो दिस इज जस्ट टू शो यू कि किस तरह हील प्रिक किया जाता है। और हमें ये, हम लोगों ने ये फॉलो किया है कि अगर मदर या केयर टेकर के शोल्डर पे बच्चे को रखते हैं, इंडिपेंडेंट हील रहती है, तो कलेक्शन इज वेरी वेरी इजी। So congenital hearing loss is one of the disorders which is recommended to be assessed, and it is a part of RBSK also. Again, the prevalence is very high, and there are guidelines ki screening up 1 month se pehle kar lo, hearing loss diagnosed and hearing aid by 3 months, and intervention by 6 months. So iske liye program hai, and I think iske liye aapka alag bhi डिस्कशन होगा, एंड देयर आर प्रोटोकॉल्स फॉर दिस। बट इसमें बॉटम लाइन ये है कि हमारी एक टीम होना जरूरी है। एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू हैव अ टीम फॉर एवरीथिंग विच यू डिटेक्ट इन द बेबी। सो टीम होनी चाहिए कि अगर हमारा हियरिंग डिफेक्ट निकला तो हम क्या करेंगे, अब आगे कहाँ रेफर करेंगे, स्पीच थेरेपी कब शुरू करेंगे, हियरिंग एड कब देंगे, जेनेटिक्स रेफरल कब जरूरी है, अगर इम्प्लांट करना है तो कब जरूरी है। तो ऑल एवरीथिंग हैज टू बी इन प्लेस। Similarly, for congenital heart disease, you have already been taught about this by Professor Neeta Saxena. But again, अगर हम देखें तो actually congenital heart disease are the commonest birth defects, पर हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि रूटीनली इको नहीं होता है। सब बच्चों का इको कर पाना पॉसिबल नहीं है इन आवर सेटिंग। तो इसमें ये स्ट्रैटेजी है जो अगेन इज अ पार्ट ऑफ द CCHD स्क्रीनिंग, जिसमें कि सैचुरेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है कि सीवियर कार्डियक डिजीज है या नहीं है। एंड दिस वी विल नॉट गो इन डिटेल, यू मस्ट हैव बीन ऑलरेडी टॉट अबाउट दिस, कि कौन से टारगेट्स हैं जिनको हम पिकअप करते हैं और हमें क्यों इनको जल्दी पिकअप करना है, बिकॉज वी वांट अर्ली रेफरल एंड इंटरवेंशन। एंड अगेन, under RBSK, you have a network, you have a follow-up, and you have centers where these patients can be referred for definitive treatment like surgery. So again, I would like to emphasize again teamwork. So any screening birth defect की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए एक आपके पास टीम होना जरूरी है। Even for CCHD, initial screening के बाद हम pediatrics में भेजेंगे कि हम cardiology में भेजेंगे, CTVS जो surgeons हैं उनको कैसे tag करेंगे साथ में, this is very important. So the bottom line here, if we talk of RBSK as a whole, and this is, I think, the beautiful and the most important thing about the RBSK program is that this is a comprehensive newborn screening program. So what has happened in the West is कि in parallel उनके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, because birth defect structural उनका बहुत जल्दी शुरू हो गया। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग उनका थोड़ा बाद में शुरू हुआ या पैरेलल शुरू हुआ, पर वो एक पैरेलल प्रोग्राम था। हियरिंग स्क्रीनिंग और CCHD उन्होंने बाद में ऐड किया, बट वी वर सॉर्ट ऑफ फॉर्चुनेट एनफ कि इसके लिए इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी। एंड इन RBSK दिस इज ए यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो हम बर्थ डिफेक्ट स्ट्रक्चरल को अलग नहीं देख रहे, हम उनको भी देख रहे हैं, हम ड्राइड प्लॉट भी देख रहे हैं, ड्राइड ब्लड स्पॉट से भी देख रहे हैं, हम हियरिंग स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, हम CCHD भी कर रहे हैं। एंड अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ RBSK and many more programs like NEEV in Delhi and our own program in AIIMS. And हम हाई रिस्क स्क्रीनिंग को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फॉर NICUs एंड SNCUs। इसके लिए टाइम नहीं था, वी कुड हैव डिस्कस दिस, पर ये प्राइमरीली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं जिसमें हम रेड फ्लैग्स अगर है, बच्चे में हिस्ट्री है या सिम्टम है, तब हम हाई एंड पे जाते हैं। तो द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ दिस न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम अंडर RBSK इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज माय लास्ट स्लाइड एंड देयर आर सम टेक होम मैसेजेस दैट बर्थ डिफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्डहुड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बर्थ डिफेक्ट को डिटेक्ट करना। अ कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन, एज आई एम्फेसाइज कि एक डिफेक्ट आपको मिला है मेजर या माइनर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर or additional defects, to look for a genetic cause also. Or screening of birth defects pre and postnatally enables early diagnosis and appropriate management. This I have told you. अगर आपने antenatally detect कर लिया है तो referral networks आपके antenatal period से बनना शुरू हो जाते हैं। Preventive strategies never to forget, because prevention is better than cure, and I think we have discussed in some length about the prevention aspect. And I think the bottom line is कि हमने detect किया है और बच्चा उसके बाद लॉस टू फॉलो अप हो जाता है, तो इट्स अ फेलियर ऑफ द प्रोग्राम. So we have to have a care pathway and a network
to refer these babies so that these patients can be managed appropriately and counseled appropriately. In some situation हो सकता है सर्जरी से कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है, तो उसके लिए भी काउंसलिंग जरूरी. So this is all very important after detection, counseling and follow-up and management of these babies. So thank you very much for your patient hearing. Thank you. Thank you, ma'am. I hope everybody has enjoyed the session. Ma'am, we have a couple of questions for you Sure. from all our participants. Sure. Ma'am, can we prevent all birth defects? कि सारे birth defects को हम prevent कर सकते हैं? नहीं, हम सारे बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स का हमको इटियोलॉजी ही नहीं पता है. जैसे अगर हम क्लेफ्ट लिप पैलेट की बात करें, हमें नहीं इटियोलॉजी पता है. तो प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन अगर हम बोल रहे हैं कि बर्थ डिफेक्ट होने ही नहीं देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसका एक क्लियर एग्जाम्पल हमारे पास फोलिक एसिड है और दूसरा ये है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है. प्रिवेंशन हम उसका कर सकते हैं अगर हमें पहले से पता है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में हुआ है, तो उसके लिए हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, इटियोलॉजी पता कर सकते हैं और फिर दैट विल बी काइंड ऑफ अ सेकेंडरी प्रिवेंशन कि हमने टेस्टिंग कर लिया प्रेगनेंसी के अंदर और फिर हमने अगर मेजर डिफेक्ट आता है तो देन द कपल कैन चूज टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. तो अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे और लीथल बर्थ डिफेक्ट है तो देन दे हैव अ चॉइस टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. Ma'am, a common problem that we all are facing, specifically our generation, there are a lot of lifestyle diseases the girls are suffering from. So does it have any implication on birth defects? Okay, so lifestyle issues we have discussed a little bit. So as I have told you that as of now the life has become quite sedentary, right? So chances of obesity, metabolic syndrome, diabetes, all this increases. And I have told you that these are high risk factors for, it has been reported that these are the high risk factors for many of the congenital malformations and birth defects also. तो इसको तो prevent करना है. और दूसरा ये है कि we really do not know that the kind of diet which is being used nowadays, I mean nobody has documented that the kind of fast food we are consuming उससे कोई relationship है या नहीं है. But then I think the bottom line is कि एक healthy diet बहुत जरूरी है सबके लिए. तो उसमें हमें अगर हम vegetables का और जैसे vitamins, folates इन सब का intake ठीक रहेगा तो अपने आप ही एक preventive strategy हो जाती है. एंड अदर थिंग इज कि जो हम एक्सपोजर की बात करते हैं और दूसरा ये है कि थोड़ा प्लान्ड प्रेगनेंसीज अगर रहेंगी और हम पेरी कंसेप्शनली या प्री कंसेप्शनली थोड़ा डिस्कशन करेंगे एंड उसी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई है कि हम ये सेम चीजें हम बता दें हेल्थ केयर वर्कर्स को कि एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू these couples and then they can, and then if there's a family history then obviously then they can come for counseling and we can act on that. आप फोर्टिफाइड फूड के बारे में आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कि Yeah. इंडिया के अंदर अभी फोर्टिफिकेशन का क्या स्टेटस है? दो इट डजंट कम अंडर Ministry of Health and Family Welfare, but still, if we can always discuss this thing, what is the role of fortified food? Sure. In fact, I was planning to speak about that, but I forgot. So, जब हम particularly fortification की बात करते हैं, तो folic acid fortification की बात हो रही है, and all the Western countries are doing folate fortification of their primarily their flour, which they make bread basically. So आटे का fortification with folic acid. So इसकी in fact very recently there has been a move and through FSSAI actually ये है कि there is a definite quantity of folic acid which has to be used for fortification of food. So there has been a change in the recommendation of FSSAI which is less than what is recommended, and we have sort of given a justification to them and submitted something to them that food fortification one is important for India and the dose has to be managed. So fortification का फायदा ये है कि अगर adequate अमाउंट हमें रेगुलर डाइट में ही मिल जाएगा फोलेट का, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा जो हमें पेरी कंसेप्शनली देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मदर हमारे पास आती नहीं है, वो आती है जब प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो जाती है. तो वो अगर कंज्यूम कर रही होंगी ऐसा फूड जो ऑलरेडी फोर्टिफाइड है तो मेजर रिडक्शन हो जाता है बर्थ डिफेक्ट्स का. एंड दिस बर्थ डिफेक्ट प्राइमरीली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड दिस हैज बीन प्रूवन. एंड रिसेंटली salt fortification with folic acid has also come in. So many parts of India, particularly Haryana, they have done fortification and our follow-up analysis is on
that has it affected the neural tube defects, and then many other regions, some regions are also working on rice fortification. So this is very important, a component of prevention of birth defects, particularly neural tube. Ma'am, is there any role of vaccination for girls in prevention of birth defect? So Rubella primarily, vaccine? primarily rubella. So rubella immunization has come into picture, and they are saying adolescent girls should be given, because then if they conceive and then exposure is there, particularly in the first trimester, then there is a very high risk of major birth defects in the baby, like congenital rubella syndrome, जिसमें कि up to 80% अगर first trimester में exposure हुआ है, तो babies can get affected. So there is a role of rubella immunization definitely. Ma'am, just a question. Another question is that is regarding the role of MTP medication, because a lot of MTP medication are available in the market and people are using it. And unfortunately, if they don't work, do these medications cause any birth defect in the fetus? Okay, so the kind of drugs which are being used uh, can lead to birth defects because reduction defects have been described if you take drugs for termination, and they are actually the drugs which should not be used during pregnancy. They are categorized in group D or group X. So if suppose there's a failed termination, it is not always that you will have a problem, but there can be a problem which can be picked up on ultrasound. So yes, these drugs should, unless there's a major, many times it is a voluntary termination also which the couple wants. So in consultation, it has to be taken. And if it's a failed termination, a regular monitoring has to be done. Ma'am, a common challenge that hamari MSTs or DIC staff people face is that they diagnose the child with a birth defect, they give the option of treatment to the parents. But unfortunately, because of the ignorance of the parent or the lack of communication skill on our side, the cycle is not completed. Ma'am, my question to you as an expert who's been dealing with birth defects for past so many years, you do counseling for parents. So, ma'am, what are the couple of pointers that you will like to give to our colleagues so that when they do the counseling or breaking the news to the parents, they should take into consideration so that we are able to provide maximum care to the children who are in need? Okay, so I would like to divide this question in 3 scenarios. So one scenario could be that you have detected something antenatally. During pregnancy आपने detect कर लिया है, which can be a structural birth defect, mainly structural की बात कर लेते हैं. तो उसमें, as I told you, the counseling starts there and then. So if you have detected a clubfoot antenatally, so knee-jerk reaction of the parents would be that this is a defect. And similarly, it is for cleft lip and palate. Now, this is a defect which will lead to disfigurement and so on and so forth. So at that point in time, as I told you, the team starts working. तो आपका क्या रोल है कि पहली बात तो आपने डिटेक्ट किया that ये डिफेक्ट है, इसके consequences क्या है, and what are the outcomes. So suppose you detect a baby with anencephaly in the antenatal period, obviously you will counsel the mother that these children would not survive. Similarly, if you have a very huge neural tube defect, meningomyelocele, with hydrocephalus, and you can even make out the movement of the limbs of the baby in utero, and you find that baby has already, the nerves have already got damaged, so outcome अच्छा होने वाला नहीं है. तो आपको उस तरह काउंसलिंग करनी है. But on the other hand, if it is a defect which is reparable, small neural tube defects, only meningocele, say clubfoot, a cleft lip and palate, which is easily reparable. तो आपको वहीं से ही उनको explain करना पड़ेगा that these babies, unless there are genetic causes, and as I told you how to rule out those situations, तो हम आपको बताना पड़ेगा कि ये treatable है और हम आपको अभी से support कर रहे हैं, हम आपको अभी से आपको लूप में ला रहे हैं उन लोगों के जो आगे जाके आपके बच्चे का ट्रीटमेंट करने वाले हैं. एंड व्हाट आर दे कंसर्न्ड अबाउट इज कितनी बार सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद बच्चा कैसा रहेगा, इमीडिएटली हमें कुछ करना है या नहीं करना, तो वो हम शुरू से एक लूप हमें बनाना चाहिए. तो दिस इज फॉर द एंटीनेटल. फॉर द न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, एज इट इज बीइंग डन एज से सर्विलेंस, अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, हम अगर पहले से थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे पर्टिकुलरली फॉर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, देन दे विल बी अवेयर कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम निकले, एंड देन
then and there we have to again close the loop कि अब हमें अब next क्या करना है, next क्या करना है, next क्या करना है. तो होता ये है many times which I have found is कि एक newborn screening करा लिया, किसी ने counseling नहीं किया, and the patient is just roaming around with the report कि अब hypothyroidism आ गया, ये metabolic disorder आ गया. किसी ने उसको काउंसलिंग नहीं किया कि अगर आएगा तो आपको आगे क्या करना है और किसको दिखाना है. तो दैट हैज टू बी इन प्लेस. तो ये जैसे ही न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में मिला, बर्थ डिफेक्ट बर्थ पे मिला, यू हैव टू सिट विद द टीम एंड टेल द फैमिली कि अब आगे हमारा क्या प्लान है. थर्ड सिनेरियो जो आरबीएसके में फ्रीक्वेंटली आएगा कि डिफेक्ट हो चुका है और अब आपने देखा, तो उसमें आपको उस समय एनालिसिस करना पड़ेगा कि एट व्हाट स्टेज द बेबी इज, how correctable the defect is, how much we can do at this point in time. But again, counseling and bringing other people in loop is important, and how much it will be totally rehabilitative. Okay, but then even at that stage, that is a tertiary kind of a management, tertiary prevention kind of a thing, we can still do many things. So I think bottom line is communication at all levels. And if we do it well, then patients are not that they are not lost that what is to be done. So that's from my side. Ma'am, the general perception that when we go in the field is हमें कई बार parents से सुनने को मिलता है. For example, this is a personal experience I'm sharing with you is that we have gone to a village for a survey kind of exercise, and our mobile health teams ने एक congenital deafness के बच्चे को identify किया हुआ था. उसका सब testing भी हमने करा लिया कि उसको cochlear implant डलने वाला है. All testing has been done. But parents का simple ये था कि ये बच्चा ठीक है, इसको आपको hearing aid देने का मतलब cochlear implant क्यों देना है? बिना मेरे घर में बाकी भी 2 बच्चे हैं जिनका hearing loss है and वो ठीक कर रहे हैं, they are married, everything. So how do we deal with these kind of challenges? Because when we go down at the grassroots level, these kind of cases do come up. Right. Any So, special way to deal with them? so the issue is one, and as you very rightly said that हम लोगों ने डेफनेस के एरिया में कुछ काम किया है. तो देयर आर मेनी फैमिलीज, जब हम जेनेटिक टेस्टिंग की बात करते थे डेफनेस के लिए, तो दे वुड से दैट इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस. एंड एज यू आर सेइंग कि और भी बच्चों को डेफनेस है एंड दे आर गोइंग टू डेफ स्कूल एंड दे आर यूजिंग साइन लैंग्वेज, और हम तो सब समझ लेते हैं, बच्चे सब करते हैं, बस बोल नहीं पाते हैं, ये वाला इशू है. तो उसमें ये है कि this is for genetic testing because most of the western world would say कि हमारे पास तो सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एंटीनेटली भी अगर कोई बच्चा किसी को डेफनेस है तो हम जेनेटिक टेस्ट करें. तो अब इशू ये है दैट हाउ बॉदर्ड दे आर विद डेफनेस इफ द चाइल्ड इज हैविंग डेफनेस. सो इन दैट सिचुएशन आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उनको ऑप्शन दें. बिकॉज मेजर इशू क्या है कि अगर हमारे पास डेफ बच्चा है तो बेसिक प्रॉब्लम होने वाली है, अगर वो नॉन सिंड्रोमिक है, सिर्फ डेफनेस है, तो हमें मेजर प्रॉब्लम होने वाली है स्पीच की. एंड वी हैव टू काउंसिल देम दैट अर्ली इंटरवेंशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि विद इन 1 month डिटेक्ट हो गया, हियरिंग एड देना है तो विद इन 3 months दे दिया, देन स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो गई, इम्प्लांट करना है तो हो गया. तो I think one thing is this, that if they already have that one child and many patients would not like to their second child to suffer, they would easily opt for all these interventions. Some people may not. And opt nahi karne ka ignorance हो सकता है रीजन हो दीप्ति, बट मुझे ये लगता है कि बिकॉज दे डू नॉट नो, दे रियली गेट हैसल्ड कि अब हमें डिटेक्ट हो गया, अब हमें और कहाँ जाना है, अब एक दूसरा टेस्ट भी करना पड़ेगा, फिर वो हियरिंग एड कहाँ से मिलता है, हियरिंग एड का तो इतना कॉस्ट होता है, हमें कहाँ से मिलेगा, अगर आप बोल रहे हो ऑपरेशन करना है तो उसका तो 5 लाख रुपया खर्चा होता है, हमारे पास कहाँ से आएगा. तो अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ पेरिफेरी एंड ही इज नॉट एक्सपोज्ड टू सेंटर्स वेयर ऑल दिस इज बीइंग डन. So we have to tell them ki we are there with them at each step. Okay, and then we have to be there with them at each step if we tell them, right? So again, telling them that these are the steps and these are the advantages. So agar hearing aid laga diya gaya ya implant ho gaya, then this child would be like any normal child. And even in that situation, if they decide ki unko kuch nahi karna hai, it is their own call. But that's what we can explain to them. Ma'am, एक other burning issue that majority of the girls in our generation are facing is PCOD, and they are put on medication for this. Does the medication that we take for PCOD also has any implication on birth defects in near future? Dipti, I'm not sure about the PCOD drugs. We can check that, but the hormonal treatment which is given for PCOD can have some impact.
For the specific drugs, I don't know. Maybe I'll get back to you on that. Okay, okay. Thank you, ma'am. Ma'am, in the end, before we close, can you just summarize pointers in antenatal care, whether it's folic acid or antenatal care that we have to take? Just summarize everything so that we can all take the messages back home when we go. Okay. Okay. So I'll begin with periconceptional or preconception. Okay. So all the advice for a healthy lifestyle and correct those. अगर diabetes है तो उसका पहले treatment कर लेना है, और भी कोई problem है तो at the time when the lady is planning to conceive, she should be in a normal health state as much as possible. And one thing is this, and the drugs I have talked to you about, any particular drugs which are known to be teratogenic, and this information is available on net, that which are the drugs which should not be used during pregnancy, and then how you can prevent. जैसे मैंने बताया कि anticonvulsants commonly use होते हैं, तो हमें ये best तो ये कि हम preconceptionally ही बात करें, so that by the time the mother comes to us, many things have already happened. So periconceptional period or preconception period, counseling about thalassemia screening, history taking about genetic disorder. Then same applies to the periconceptional or early conception. And in the antenatal period, I have told you that screening होना जरूरी है, thalassemia screening, and folic acid आपको सबको देना है, चाहे history हो या नहीं हो, and we have discussed about the dose. In the antenatal period, I have told you about the screening. For aneuploidies, biochemical screening and antenatal ultrasound, at least 2, I have already told you. And then depending on what it is, counseling should build in at that point in time only. For newborn screening, again, you have to counsel the family before you take the sample. For structural birth defects, obviously you will have it when you see the child, and then act accordingly. And as a message, I would like to say that the birth defects which have been listed and the major ones should be picked up at all healthcare levels, and a proper referral system should be done. And when the child is already grown up, some of the disabilities already come in, even at that stage, we can help this family. And again, counseling and doing best possible. But I think we have to be very clear to the family since the beginning, because we should not give them a false hope कि अगर major neural tube defect है with gross meningomyelocele तो उसका surgery हो जाएगा. So that counseling is very important, because we have to close the loop also, that for this particular baby we cannot do anything. For these babies we must do something, because there are very good chances that these babies are going to do well. So I think this is the message which I have. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you for answering all our questions and giving such a wonderful presentation to all of us. On behalf of DC Childhood and RBSK, Dr. Shobna ma'am, I express my gratitude for giving your valuable time to for all of us. And thanks to all the participants who have joined us. Thank you. Thank you very much. Thank you.